محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع ہومو سیپینز کا ایک اہم فنکشن ہے۔ یہ اس کی جبلت ہے اور اسی جبلت کی بنیاد کے اوپر ہومو سیپینز نے اس کائنات کی تسخیر کی ہے۔ ہومو سیپینز کون ہے؟ یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں۔ یہ جو اس کی جبلت ہے، یہ جو ڈیسیژن میکنگ اس کا نام ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر اس نے ساری کائنات کی تسخیر کی ہے۔ یہ ڈیسیژن میکنگ ہے کیا چیز؟ یہ تصویر آپ کو بتا رہی ہے کہ جب بھی آپ یہاں سے چلے تو اس مقام پر پہنچ کر آپ کے پاس ایک یہ رستہ آ گیا، ایک یہ رستہ آ گیا۔ اب ان راستوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایک راستے کو منتخب کرنا ہے تاکہ آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ آپ کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے یہ راستہ جو ہے منزل مقصود پر لے کر جائے گا یا یہ راستہ مجھے منزل مقصود پر لے کر جائے گا؟ یہ جو ڈیسیژن ہے، یہ بڑا کیلکولیٹڈ ڈیسیژن ہوتا ہے۔ یہ کسی بنیاد کے اوپر ڈیسیژن ہوتا ہے۔ یہ انٹیوشن کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا۔ انٹیوشن کی بنیاد کے اوپر کسی ایک دفعہ تو صحیح ہو سکتا ہے، 2 دفعہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ ڈیسیژن صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کی کچھ نہ کچھ بنیادیں ہیں، جن بنیادوں کے اوپر اگر آپ ڈیسیژن لیں گے تو وہی ڈیسیژن صحیح ڈیسیژن ہوگا، وہ بے شک اجتماعی زندگی کے لیے ہو یا انفرادی زندگی کے لیے۔ ڈیسیژن میکنگ ہے کیا؟ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کسی کورس آف ایکشن کو ڈیسائیڈ کرنے کا نام ہے، کسی راستے کو چوز کرنے کا نام ہے۔ لیکن اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اس کی بنیادیں پاسبلٹیز ہیں، اس کی بنیادیں آپشنز ہیں، اس کی بنیادیں ان دونوں کو کمپیئر کرنے کا نام ہے، اور ان میں سے جو بیسٹ ہے اس کو چوز کرنے کا نام ڈیسیژن میکنگ ہے۔ ڈیسیژن میکنگ ایک مینیجریل فنکشن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ پلاننگ کرنے کے بعد ہم ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اس کی جب امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے، بندوں کو آرگنائز کرنا ہے، ان کو لیڈ کرنا ہے، موٹیویشن دینی ہے، کوئی لیڈرشپ مہیا کرنی ہے۔ پھر جب بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو مانیٹر اور کنٹرول کرنا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ جو ہے یہ پلاننگ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، اور ڈیسیژن میکنگ آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ جو مینجمنٹ کے فنکشن ہیں ان کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ مینجمنٹ کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم ٹول ہے۔ اب ہم ڈیسیژن کیسے لے سکتے ہیں؟ ڈیسیژن لینے کا ایک پروسیس ہے، وہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے۔ یہ کوئی انٹیوٹیو پروسیس نہیں ہے، یہ کوئی سبجیکٹو پروسیس نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمیں جو پرابلم ہوتا ہے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ جب بھی وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو ہم اس کے متعلقہ ہر قسم کی معلومات اکٹھی کرتی ہیں یا ہم اس کا SWOT انالیسس کرتے ہیں۔ اب جب ہم اس کا SWOT انالیسس کر لیتے ہیں تو ہم اس میں سے مختلف الٹرنیٹیو بناتے ہیں۔ اب جو ہم نے الٹرنیٹیو بنا لیے تو ہم پھر ان کو جو ہے ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں۔ ان ٹیکنیکس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کی ایویلیویشن کریں گے۔ جو ہمیں سب سے بہتر نظر آیا اس کو ہم چوز کر لیتے ہیں، اور چوز کرنے کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ امپلیمنٹ میں جا کر ہمیں مسائل آ سکتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے چیزیں جو ہماری نظر میں نہیں آئیں
वो उस इम्प्लीमेंटेशन में दर आ सकती हैं, तो फिर हम उसको रिव्यू करते हैं और उसको बेहतर कर सकते हैं। सो डिसीजन मेकिंग एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। ये होमो सैपियंस सैपियंस की एक इंस्टिंक्ट है। इसी की बुनियाद के ऊपर समाज जो है वो तरक्की करते हैं। कोई फर्द जो है वो एक बेहतर फर्द अपने आप को साबित कर पाता है। अब एजुकेशनल सेटअप में हमारे पास कई लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं या डिसीजंस को मुतासर करते हैं। इसमें स्कूल की सतह के ऊपर हेडमास्टर साहब होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, टीचर्स होते हैं जो क्लासेस में डिसीजन लेते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर एक हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब होते हैं जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन के हवाले से हर किस्म के डिसीजन लेते हैं। फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर वो के लेवल पर भी हो सकते हैं, सूबाई सतह पर भी हो सकते हैं, हुकूमती सतह पर भी अपना पूरे मुल्क की सतह पर भी हो सकते हैं। वो जो हैं वो हमारे डिसीजंस को मुतासर करते हैं। इसी तरह पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हवाले से, पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से वो हमारे डिसीजंस को मुतासर करते हैं। इशू क्या है? इशू ये है कि हमें जो भी डिसीजन लेना है उसको सब्जेक्टिविज्म के ऊपर नहीं लेना चाहिए, हमें उसको ऑब्जेक्टिविज्म के हवाले से लेना चाहिए। उसकी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसके हवाले से लेना चाहिए। जो स्वोट एनालिसिस डिमांड करता है उसकी बुनियाद के ऊपर हमें डिसीजन लेना चाहिए, ना कि पॉलिटिशियंस की बुनियाद के ऊपर, ना प्रेशर ग्रुप्स की बुनियाद के ऊपर, ना किसी सब्जेक्टिविटीज़ की बुनियाद के ऊपर। अब डिसीजन के एलिमेंट्स क्या हैं? हम कैसे एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं? हम कौन सा डिसीजन ले सकते हैं? ये हमें इसके एलिमेंट्स बताते हैं। इसमें व्हाट ये बताता है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। कोई हमें लंबे टाइम का डिसीजन लेना है, हमें कोई छोटे टाइम का डिसीजन लेना है, या हम किसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कोई टेक्निकल डिसीजन लेना चाहते हैं। सो ये हमें बताता है कि उसके नेचर क्या होगी। डिसीजन की नेचर डिसीजन के टाइम के साथ जुड़ी हुई है, डिसीजन की डिमांड के साथ जुड़ी हुई है। फिर कौन डिसीजन लेगा? कोई लीडर डिसीजन लेगा, कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेगा, या कोई कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर में एक फैमिली में रहता हूँ, हमारा एक ग्रुप है, हम वहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन भी ले सकते हैं और कलेक्टिव डिसीजन भी ले सकते हैं। जो कलेक्टिव डिसीजन होगा वो फैमिली के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब कब डिसीजन लेंगे? अगर आपको किसी ने को प्रोवोक किया है तो आप डिसीजन ले सकते हैं, या आप जो है वो बहुत साइंटिफिक स्टडीज से, एनालिसिस से अपने पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद अगर एक डिसीजन लेते हैं तो वो आपका प्रोएक्टिव डिसीजन होगा। इसी तरह आप कैसे डिसीजन लेते हैं? मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इंट्यूटिव जो डिसीजन होते हैं वो दुरुस्त नहीं होते, लेकिन जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर डिसीजन होते हैं वो ही सही डिसीजन होते हैं। आप इंफॉर्मेशन से मुख्तलिफ ऑप्शंस डिटरमिन करते हैं, उन ऑप्शंस को कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन को चूज करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो डिसीजन के लिए व्हाट, हु, व्हेन एंड हाउ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन खराब भी हो जाते हैं। खराब हमारी बेवकूफ़ी से हो सकते हैं, खराब हमारे तरीक़ाकार से हो सकते हैं, खराब हमारी सब्जेक्टिविज्म से हो सकते हैं, खराब प्रेशर ग्रुप्स की वजह से हो सकते हैं। सो वो कौन से फैक्टर हैं जो एक डिसीजन को एक पुअर डिसीजन में तब्दील कर देते हैं? नंबर 1, वो हमारा जो है वो स्वोट एनालिसिस जो हम बेहतर अंदाज में नहीं कर पाए उसकी वजह से हो सकता है। हमने एनालिसिस किया ही नहीं, हमने सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया इंट्यूशंस की बुनियाद के ऊपर, वो हमारा वो डिसीजन हो जाएगा। हम अल्टरनेटिव बना ही नहीं रहे, ऑप्शन बना ही नहीं रहे, इंफॉर्मेशन बहुत इकट्ठी कर रहे हैं, डेटा बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए किताबों की किताबें भर दी हैं। सो हम प्रॉपर वे अडॉप्ट नहीं कर रहे। जो हमने डेटा इकट्ठा किया है हम उसको लिंक अप नहीं कर पा रहे।
तो उसकी वजह से भी हम एक पुअर डिसीजन लेंगे। सो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको तरीकाकार को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब डिसीजन मेकिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, ये 6 या 7 टेक्निक्स हमें बताई गई हैं। इनमें एक साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है, यानी कि आप जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको लीड करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसी तरीकाकार के मुताबिक आप डिसीजंस को भी लेंगे। इसी तरह ह्यूमन रिलेशन है कि आप किसी मोटिवेशन की बुनियाद के ऊपर कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी लीडर के कहने के ऊपर आप डिसीजन ले रहे हैं। इसी तरह एम्पेरिकल टेक्निक है, उसकी क्या सूरत हाल है कि हमें देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हाँ भाई, किसी मैनेजर ने या किसी बड़े बंदे ने इस तरह का डिसीजन लिया तो हम भी उसी को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन हालात बदल गए हैं भाई, उनको कौन पेश नज़र रखेगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के हवाले से हम एक डिसीजन ले लेते हैं। इसी तरह हम किसी चीज़ को बहुत प्रिसाइज करने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके उसके फार्मूला की बुनियाद के ऊपर हमको डिसीजन ले लेते हैं, या हम डिसीजन थ्योरी की बुनियाद के ऊपर, यानी कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर अपना डिसीजन बना लेते हैं, या जो आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है वो जो हमें बताती है उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं, या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं। अब जो हम डिसीजन लेते हैं इसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि हम एक आइडिया या प्रॉब्लम को लेते हैं, उसके हवाले से हम मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उनको डिस्कस करके बेस्ट ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, इसमें भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सल्यूशन देखते हैं, उनको पेन डाउन करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। फिर एक डेल्फी टेक्निक है, इसमें हम क्वेश्चनर देते हैं, उसको जो रिस्पांस आते हैं उन रिस्पांस को हम एनालाइज करके एक डिसीजन लेते हैं। इसके बाद कंसेंसस मैपिंग है, डिसीजन जो हैं वो रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर बनाए जाते हैं जो हमें कोई भी ग्रुप हैंड ओवर करता है। सो हम अपने डिसीजन को एक बेहतर डिसीजन बनाने के लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमारे डिसीजंस को मुख्तलिफ लोग जो है वो मुतासर करते हैं, इनमें प्रेशर ग्रुप्स है, मुख्तलिफ एसोसिएशंस है, ये किसी सतह पर भी हो सकती है। पॉलिटिशियंस हैं, ये भी किसी सतह पर भी हो सकते हैं। प्रेस है, ये भी हमारे डिसीजंस को मुतासर कर रहा है। रात को आप देखते हैं टीवी के ऊपर प्रोग्राम लगे हुए हैं, यह सारी राय आमा को बदल रहे हैं, ये पूरी कौम को या तो कंफ्यूज कर रहे हैं या इनको कंफर्मेशन बायस का शिकार कर रहे हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर हम सब्जेक्टिविज्म का शिकार हो रहे हैं और हमारे जो डिसीजन हैं वो सब्जेक्टिव हो गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रहे ही नहीं। सो डिसीजन लेने के लिए हमें साइंटिफिक तरीकाकार को इस्तेमाल करना होगा, हमें डेटा को इस्तेमाल करना होगा, हमें प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा, तभी हम अपने इंस्टिंक्ट को साबित कर पाएंगे कि हाँ भाई, होमो सैपियन की जो इंस्टिंक्ट है डिसीजन लेने की, वो एक परफेक्ट टेक्निक है, एक परफेक्ट तरीकाकार है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कायनात को तस्खीर कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।